Namaskaram and good evening all. We are starting with a new chapter and probably this is the most expected chapter in examination. This chapter will come. Definitely this kind of chapters usually comes in examination and in your syllabus also it has been given a priority. Chapter number 1 का first concept ही है assessment of the company. Assessment of various entity में the first entity itself is company. So we are going to learn not only minimum alternative tax, but we are going to learn assessment of companies. So there are so many concepts so far as company is concerned. So let us handle one by one. So minimum alternative tax is the concept which is exclusively made applicable to the company type of assessee. But why MAT was applicable, to whom MAT is applicable? What if company is a foreign company? What if company is an Indian company? What if is a company is in IFSC? So there are various situations so far as MAT is concerned. So we will not directly jump into MAT and conclude the MAT. First, we will create a background of company assessment because MAT is an alternative tax system. People think company assessment means only MAT. No, it's not only MAT. MAT is also a component for company assessment. खाली MAT ही नहीं पढ़ना है. MAT पढ़ने से पहले we have to understand basics of computational mechanism. I hope you people have revised all the basic chapters that we have discussed so far. और आपको PGBP, IFOS, capital gain, the assessment of business trust, assessment of various entity. You are having a good control. Pooja, please mute your mic. Thank you. Yeah. So assessment of various entity में हमने business trust का conclusion किया है, alternative minimum tax का conclusion किया है. Here we have relevance of business trust. तो आप लोगों को business trust chapter के ऊपर अच्छा खासा control होना चाहिए. At the same time, we have also discussed 115 BBF royalty का 10% का taxation. Last lecture was on that only. तो वो सब कुछ आपको आता है. This is my assumption. See, I have to assume this. भले आपको आता है कि नहीं आता, वो आप लोगों का अभी issue हो जाएगा. From my side, I have delivered all those concepts to you guys. तो उनके ऊपर hold रखना is your responsibility. As a student at a professional level, final level, आप लोगों की एक responsibility बनती है that you are supposed to revise this concept on regular basis. Income tax के ऊपर अगर hold नहीं होगा, continuously अगर आप revise नहीं करोगे तो आपको gap create होगा. Unfortunately, because my mother was admitted in the hospital for last 17 to 18 days, I could not continue the lecture in the flow that we started. Otherwise, I had determined that in this month, मतलब अभी जो आने वाला month है, कल से जो चालू होने वाला है, your syllabus should get over from my side. ऐसा मेरा target था. I'll still have the same target in my mind, लेकिन अपना 7-8 दिन का जो 7-8 days का जो gap हुआ है, that gap has to be filled up. तो हम थोड़ा 15 minutes 20 minutes extra रोज पढ़ने का try करेंगे so that we can achieve our target. Again किसी का तो माइक चालू है. माइक का प्लीज देखो. If you want to talk then unmute yourself and then talk, but usually you should keep your mic on mute. तो ये बात हमें करनी है मैट के बारे में. मैट हम बाद में डिस्कस करेंगे. वी विल कम टू द मैट टुवर्ड द एंड ऑफ द कंपनी असेसमेंट. पहले कंपनी का बेसिक टैक्स तो सिस्टम समझ लेते हैं. सो व्हाट आर द टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू कंपनी? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स रेट. यू ऑलरेडी नो 25% and 30%. सर 25% कब? When your turnover in the financial year 18-19, when your turnover in the financial year 18-19 is less than, okay, when your turnover in financial year 18-19 is less than 400 crore, तो आप लोगों को टैक्स का रेट लगता है 25%. अगर टर्नओवर का डेटा प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, they have not given you any information about the turnover data, then by default the applicable rate of tax for the company, domestic company, will be 30%. The general rate applicable for the foreign company is 40%. You know the surcharge rate for the company we have discussed in the basic concept itself. If your turnover is, if your total income, assessable income is up to 1 crore, no surcharge. 1 crore to 10 crore, 7% surcharge. Above 10 crore, 12% surcharge. Similarly, for foreign company, up to 1 crore, no surcharge. 1 crore to 10 crore, 2% surcharge. Above 10 crore, 5% surcharge.
Now you may ask me why surcharge rate for a foreign company is lower as compared to Indian company. So you know that we have discussed this, that tax rates, the basic tax rate for domestic company is low, therefore surcharge rate is high. The basic tax rate for foreign company is high, therefore surcharge rate is low. ये बात हमारी already हो चुकी है. Sir, after that we have to apply 4% cess, that is by default, and then you know the rounding of principle, that we have to round off the tax liability and total income in the multiple of 10 rupees. ये सारी बातें वहां पे applicable होगी. We will discuss that. अब मैथ के टाइम पे क्या कैलकुलेशन होगा एंड ऑल, वी विल कम टू दैट. मैथ कैलकुलेशन लास्ट में आएंगे. मैथ के बारे में ज्यादा टेंशन लो ही मत. मैथ इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. उसमें कुछ आपको 2 पेज बाय हार्ट करने हैं बस, विथ लॉजिक, विदाउट लॉजिक, वॉट एवर इज योर कॉल. आई विल गिव यू एवरीथिंग. मैं पूरा लॉजिक के साथ पढ़ाएगा. But then whether to remember with logic or without logic, if you know the format, you know the math. If you don't know the format, you don't know the math. तो मैथ तो फॉर्मेट बेसिस है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, लेकिन असेसमेंट इंटेलेक्चुअल है. असेसमेंट हैंडल करने के लिए आप लोगों को पूरे इनकम टैक्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. दैट कंट्रोल आई विल ट्राई टू गिव यू ग्रेजुअली. ठीक है. ये देखो यहाँ पे ये टर्नओवर की बातें की है कि बाबा ये 25% कब लगेगा, 30% कब लगेगा, 40% कब लगेगा. Sir, in recent year we have introduced, कोविड के पीरियड में खास करके ये हुआ था, जो इकोनॉमी है उसमें कुछ ज्यादा ही स्लो डाउन आ गया था. इनफैक्ट अभी भी है, स्लो डाउन तो चल ही रहा है. तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंडिया के टैक्स रेट सब्सटेंशियली गिरा दे फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर. एंड उसमें गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और उस सेक्शन का नाम है 115 BAB and 115 BAA. BAA and BAB, 115 BA was already in existence. ये तो 2016 से ही था, लेकिन अभी BA का इतना ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट अ सिमिलर सेक्शन. BA को बंद करके गवर्नमेंट को पूरा शिफ्ट करना है BAA में, सारी कंपनीज को BAA में शिफ्ट करना है. और जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की कंपनीज होती है उनके लिए BA भी निकाला हुआ है. तो सर दोनों में फर्क क्या है एंड व्हाट इट इज, तो आप लोगों को बताने के लिए मैं आपको नोट पे लेकर चलता हूं. देखो, कंपनी का यूजुअली टैक्स रेट और नॉर्मल टैक्स रेट, कंपनी का नॉर्मल टैक्स रेट इज 25% और 30%. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन कंपनी नाउ, लेट अस फोकस ऑन इंडियन कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल. ये नॉर्मल टैक्स रेट है. इसमें बाद में सरचार्ज ऐड होगा, इसमें बाद में सेस ऐड होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होगा. तो ये सारी बातें बनके आपका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आता है कंपनी के केस में नॉर्मली. गवर्नमेंट ने बोला ये तो नॉर्मल है, ये तो विथ ऑल डिडक्शन एंड एग्जम्पशन है. विथ ऑल डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन जो भी लॉ में मिले आपको, वो सारे स्पेशल डिडक्शन ले लो, सारे एग्जम्पशंस ले लो, लेकिन आपका टैक्स का रेट ये होगा. अब गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन बनाया, नया सेक्शन बनाया 115. हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही सेक्शन है 115 BAA. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट यू आर हैविंग इन सिलेबस नाउ. गवर्नमेंट ने बोला आई विल रिड्यूस द टैक्स रेट टू 22%. 22% पे मैं टैक्स का रेट कर दूंगा, इससे कम और क्या चाहिए, व्हाट एल्स यू वांट. तो 22% टैक्स का रेट तो 22% हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर मैंडेटरी सरचार्ज लगेगा. ये सरचार्ज आपके इनकम को कनेक्टेड नहीं है, मैंडेटरी सरचार्ज है 10% का. दिस इज सर व्हाट इज सर, ये भी यहाँ पे भी तो सरचार्ज था वो 7% एंड 12% वाला, बट ये सरचार्ज जो था ना, ये सरचार्ज टैक्स अमाउंट पे था. दिस सरचार्ज वाज ऑन टैक्स अमाउंट इफ योर इनकम एक्सीड्स पर्टिकुलर अमाउंट. अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो वो वाला सरचार्ज लगेगा, ऐसा वो सरचार्ज है. इनकम टैक्स में 2 टाइप के सरचार्ज है, सरचार्ज ऑन टैक्स अमाउंट, सरचार्ज ऑन टैक्स रेट. ये जो सरचार्ज है ये टैक्स रेट के ऊपर ही लग जाता है. एंड बिकॉज इट इज अ सरचार्ज ऑन टैक्स रेट इटसेल्फ, आपका हर बार विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी लिमिट, योर सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल टू योर कंपनी. तो 22% प्लस 10% अगर हम करेंगे तो उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होगा. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स हियर? Everyone, please tell me what is the effective rate of tax? 22 plus 10% plus 4%. Please tell me effective rate of tax. I'm not having calculator with me. Please tell me. No, I have.
22%, 22. Bhai, your answer is not right. I hope you have made a calculation mistake. 22 plus 10% if you do, it becomes 24.2. And 24.2 plus 4% if you do, it becomes 25.168. Now, listen to my question very carefully. Listen to my question. If company the normal rate of tax is 25%, नॉर्मली कंपनी का रेट ऑफ टैक्स तो 25% होता है, और यहाँ पे मुझे कुछ डिडक्शंस वगैरह भी मिलते हैं, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन, चैप्टर 6A की डिडक्शन, तो आई गेट लॉट ऑफ डिडक्शंस हियर एंड देन आई हैव टू पे 25% का टैक्स. एंड यहाँ पे हमें ये डिडक्शंस नहीं मिलते. वी हैव टू गिव अप सर्टेन अमाउंट ऑफ डिडक्शन. दिस इज विदाउट स्पेशल डिडक्शन. Whatever deductions we are having in income tax law, special deduction and additional depreciation and all, without special deduction we are supposed to pay this kind of rate. So you tell me, given a choice, आप लोग कौन सा tax rate भरोगे? Normal rate of tax of 25% और alternative rate of tax of 115 BAA, इसको alternative बोलते हैं. This is alternative. Alternative rate of tax. बोलो, normal का N पकड़ो, alternative का A पकड़ो. Please tell me which tax rate you will pay. If you go with alternative, by default your tax rate will be this, by default 25.168. और अगर आप छोटी कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, तो आपको नॉर्मल टैक्स रेट में जाना है कि स्पेशल टैक्स रेट में जाना है? व्हाट डू यू सजेस्ट टू योर क्लाइंट? जल्दी बोलो, क्या करोगे? जल्दी बोलो. सर आप लोगों ने नॉर्मल बोला क्योंकि आप लोगों को लग रहा है नॉर्मल कम है ऑल्टरनेटिव से, लेकिन दिस इज द मिस्टेक दैट मेनी पीपल आर डूइंग इन द इंडस्ट्री. बहुत सारे लोगों ने यही मिस्टेक किया हुआ है. उनको लगता है नॉर्मल बेटर है. मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि सर अगर आपकी कंपनी स्पेशल डिडक्शन नहीं लेती है, वैसे भी बहुत सारी इंडिया की 95% और 99%, लेट मी से 99% कंपनी जो होती है ना, दे आर नॉट टेकिंग एनी स्पेशल डिडक्शन दैट वी आर गोइंग टू गिव अप. ऑल्टरनेटिव सिस्टम में आने के लिए हमें एडिशनल डिप्रिसिएशन को गिव अप करना पड़ता है. देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, दे आर नॉट टेकिंग एडिशनल डिप्रिसिएशन. देन एटीआई, एटीआईबी, एटीआई का बेनिफिट हमें नहीं लेना है, 35AD का बेनिफिट नहीं लेना है. मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट टेकिंग दोस बेनिफिट. ऑलरेडी दे आर नॉर्मल कंपनी. अगर आप नॉर्मल कंपनी हो तो आपको लग रहा है नॉर्मल रेट कम है सर, 25% कम है, लेकिन 25.16 से ज्यादा है. बेटा 25% अगर मैं मानता हूं और सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं भी होता, ऐसे मानता हूं, लेट मी इग्नोर द सरचार्ज फॉर द मोमेंट. आपका इनकम 1 करोड़ से कम है अगर मैं अज्यूम करता है, तो 25% थोड़ी ना क्या भरता है तू, 25% प्लस 4% भरा जाता है ना. ये बाबा 4% तो मैंडेटरी है ना यहाँ पे. 25 प्लस 4% होगा ना. डू यू अग्री विद दिस? देखो, इफ यू आर कंपेयरिंग 30 विद 25, देन 25 इज लोअर, 25.168. तुम ये वाले 25 से अगर आगे वाला 25 कंपेयर कर रहे हो, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बाबा ये 25 नहीं है, ये 25 प्लस 4% तो करना ही पड़ेगा ना. एंड इफ यू डू 25 प्लस 4%, तो आपका वैसे भी स्टैंडर्ड रेट ही 26% आ रहा है. अरे तुम लोगों को समझ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूं? 26% भरोगे कि 25.168 भरोगे? Which tax will you pay? 26 or 25.168? Given a choice. सर 25.168 ना सर, लेकिन बचा के आपने अप्रोक्सीमेटली 0.9%, 0.8% बचाया ना. 0.8% मुझे बता, अगर तेरा 1 करोड़ का टैक्स अमाउंट होगा, 1 करोड़ का टोटल इनकम होगा, 1 करोड़ का 0.8% होता है, 1 करोड़ का 0.8% होता है 100 लाख इंटू 0.8%. एक मिनट, 100 इंटू 0.8%,
ये जीटी पे लेके जा रहा है डायरेक्टली, कैलसी, कैलसी को समझ में नहीं आ रहा है। 100 इंटू 0.8 डिवाइड बाय 0.8 लाख आ रहा है, मतलब 80,000 आ रहा है। मुझे बता, सीए लोगों का फी नहीं होता 80,000, उतना तो तुम लोग खाली कंपनी को ऑल्टरनेटिव टैक्स रेट में डाल के कमा लोगे, है कि नहीं है? जल्दी बोलो, 80,000 छोटा नंबर होता है क्या? मुझे पहले वो बताओ। 80,000 इज अ गुड अमाउंट ना। मैं खाली आपका मान के चल रहा हूं कि आपका 100 लाख का टोटल इनकम है, उस पे आपने कंपनी को खाली इतना सजेशन दिया कि सर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स में मत जाओ, प्लीज गो विद ऑल्टरनेटिव रेट ऑफ टैक्स। ऑन दिस स्पॉट यू हैव शेयर्ड 80,000 रुपीज। राजा, तुमको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? Alternative tax rate is beneficial. These are concessional rate as compared to normal tax rate. 30% के साथ कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली कंसेशनल है। मैं तो बता रहा हूं ये 25 और ये 25 में कंफ्यूज नहीं रहना है। ये वाला 25 हायर है, ये वाला 25 लोअर है। यहाँ पे आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा तभी भी यही रेट आएगा, 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा तभी भी यही रेट आएगा, 100 करोड़ का प्रॉफिट आएगा तभी भी यही रेट आएगा, 1000 करोड़ का प्रॉफिट होगा तभी भी यही रेट आएगा। बोलो ये वाला क्लियर है? पहले तो 115 बी डबल ए क्या है? रेट क्लियर है क्या? रेट, हाँ रेट क्लियर है। ठीक है, आगे चलता हूं। गवर्नमेंट ने बोला कि हमारी इंडिया की 3 सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर विच इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को तो हमने फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया है। टर्टरी सेक्टर जो हमारा है, थर्ड सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर एंड इट इज ग्रोइंग एट रियली गुड स्पीड, मोर देन एक्सपेक्टेड, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। The sector which has to be focused now is the manufacturing sector, secondary sector. अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ होगा तो रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर वालों का जाता है फैक्ट्रीज में, उसका डिमांड बढ़ेगा, तो प्राइमरी सेक्टर का भला हो जाएगा। और अगर सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ होगा तो जो सर्विस सेक्टर है उसका तो डेफिनेटली ग्रो होगा, बिकॉज इफ मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट गोज अप, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, सीए में सीएस, ये सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन, everything in a service sector will go up with a rise in manufacturing sector. Government thought it is a need of a time that Indian youth, you, me, everybody who is in industry, they should think about manufacturing segment, और उनको ये मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, निर्मला सीतारमन, who is the finance minister, she has given a target that India will become 5 trillion economy by end of 2024। मतलब 2023-24 में हमारा जो टारगेट होगा बाय नेक्स्ट इलेक्शन, जब उनका नेक्स्ट इलेक्शन का राउंड आएगा, दे आर टारगेटिंग दैट इंडिया शुड बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। राइट नाउ इंडिया इज अराउंड 2 ट्रिलियन इकोनॉमी, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, बहुत ही, आई एम नॉट गोइंग इनटू the accurate numbers of GDP and all, but we are somewhere around 2 trillion economy, 2.5, 2.8, ऐसा कुछ तो है अपना एक नंबर। So we are talking about doubling the economy, doubling GDP। बाबा ये इतना आसान नहीं है। मतलब आज हमारे कंट्री में जो प्रोडक्शन या सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है गिवन 2 to 3 years time, that is impossible if we do not give rise to मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन लाया, एंड दैट सेक्शन इज 115 BAB, बैब। ओके, 115 BAB बोलता है, इफ यू स्टार्ट एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया बिफोर 31st मार्च, बिफोर, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर 31st मार्च 2023, 31st March 2023 is the target date. Before 31st March 2023, if you start manufacturing company in India, then your tax rate will be 15%, only 15%. And let me tell you, when I say 15%, India become tax haven for this. बाबा ये टैक्स हेवन बन जाता है क्योंकि हम लोग लो टैक्स जुरिडिक्शन में फॉलो होते हैं। Every developing country is having a highest possible corporate rate of tax. कंपनी का टैक्स 15%, this is lower than individual rate of tax. एक इंडिविजुअल को जितना टैक्स लगता है ना प्रोप्राइटर को इफेक्टिवली, उससे कम रेट है ये 15%। 15% रेट ऑफ टैक्स होगा, 10% मैंडेटरी सरचार्ज लगेगा, मैंडेटरी हर बार लगेगा ये सरचार्ज, एंड 4% का सेस लगेगा। अगेन कैन यू प्लीज गिव मी द इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स?
इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स प्लीज टेल मी 15 प्लस 10% प्लस 4%, एवरीवन 17.16%. तो 17.16% is the effective rate of tax. 1716 याद रखो, 1716 is the effective rate of tax. 17.16 is the effective rate of tax in India. This is almost unbelievable. अनबिलीवेबल कि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को गवर्नमेंट ने इतना सर पे चढ़ा के रखा हुआ है. तो इन दोनों का हम अभी डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, एंड सिमिलरिटी क्या है, जो भी है पढ़ लेंगे. 115 बीए अभी आउट होने वाला है. एवरी कंपनी विल गो आइदर इन 115 BAA और BAB. प्रैक्टिकली लेट मी टेल यू, जितने भी कंपनीज का मैं ऑडिटर हूं, ठीक है ना, अपन कुछ अप्रोक्सीमेटली 30 कंपनीज के ऊपर ऑडिटर है. जितने भी कंपनीज का मैं ऑडिटर हूं, आइदर दोज कंपनीज आर गोइंग टू गो इनटू 115 BAA की कंपनी की क्वांटिटी ज्यादा है. और हमारी जो पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह है, जो हमारे पार्टनरशिप फर्म के क्लाइंट है, हमने उनको सजेशन दे दिया है बंद करो वो पार्टनरशिप फर्म, धीरे धीरे भाड़ में जाए पार्टनरशिप फर्म. 30% का टैक्स रेट है पार्टनरशिप फर्म को, 30% का बेस टैक्स रेट बता रहा हूं, फिर सरचार्ज, फिर सेस. तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज टू हाई. हमने उनको बोला यार कॉर्पोरेट कंप्लायंस का कॉस्ट जाने दो, 10-15 हजार आप मत देखो सर, यू प्लीज स्टार्ट अ कंपनी. और जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में है उनके तो सर पे बैठ के हम नाच रहे और उनको बोल रहे जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू करो, हम लोग उसको 115 BAB में डालेंगे. तो माय कंपनीज वेरेवर आई एम ऑडिटर राइट नाउ आर आइदर अंडर 115 BAA और दे आर इन 115 BAB. हमने इसके अलावा कोई भी कंपनी को बाहर जाने के लिए बोला ही, मतलब हमने बोला है कि बाहर जाना ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैट एप्लीकेबल नहीं होता. मैट करके जो भी कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, 115 JC करके या JB करके एक प्रोविजन है हमारी, ठीक है ना, 115 JB मैट, ये प्रोविजन ही हमें एप्लीकेबल नहीं होती. उसका लॉजिक मैजिक सब बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैट में से मुक्ति मिल जाती है. और इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स इन दोनों सेक्शन में कम है, 25.168 कुछ तो ऐसा परसेंटेज यहाँ पे आया था, और यहाँ पे 17.16% आता है. दिस इज द लोवेस्ट पॉसिबल रेट दैट यू कैन ऑफर. 17.16 is the lowest effective rate of tax that you can offer to any company which is performing a very well. You know, its profit margins are in crores. तो 17.16, बट इतना ही आपके पास प्रॉफिट मार्जिन है, इतना ही टैक्स है, बहुत कम टैक्स रेट हो जाता है. तो देखते हैं एप्लीकेबिलिटी क्या है. टैक्स ऑन इनकम सर्टन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये तो जाने दो, बंद ही होने वाला है. टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टन डोमेस्टिक कंपनी, ये डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर लगता है. टैक्स ऑन इनकम ऑफ न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो हर जगह पे एक वर्ड कॉमन था, डोमेस्टिक. दैट मींस दिस सेक्शंस आर नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनीज, इट आर एप्लीकेबल टू ओनली इंडियन कंपनीज. सर ये कंपनी कब चालू होना है, तो ये तो ऑन और आफ्टर 1 March 2016, ये तो लॉन्ग बैक है, ओल्ड सेक्शन हो गया. अभी यहाँ पे कोई बेनिफिट लेने भी नहीं वाला, क्योंकि रेट इसका बहुत ज्यादा है, 25% है. बेनिफिट अंडर दिस सेक्शन अवेलेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑन विच कंपनी वाज सेटअप. मतलब ये कंपनी यहाँ पे जो 100 BAB में जो कंपनी है, दैट कैन बी ओल्ड कंपनी, दैट कैन बी न्यू कंपनी, that can be service sector company, that can be manufacturing sector company, that can be trading sector company. भैया ये कोई भी कंपनी हो सकती है. हाँ, लेकिन ये जो कंपनी है जो कंसेशनल मतलब टैक्स हेवन जैसा है, 17.16 वाला जो रेट है, that is applicable only after 1 October 2019, और इसका सनसेट क्लॉज जो है वो 31 March 2023 है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट. अब अभी अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में आप लोग सीए में बनने वाले हो, आपके हाथ में रिजल्ट होगा, आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे, तो आपको ये डेट शायद पूछा जाएगा, या तो आपको पूछा भी अगर नहीं जाएगा, देन आल्सो यू नीड टू टेल देम कि सर देखो इस डेट के पहले अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप किया तो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स डायरेक्टली 17.16 होता है. अगर आप किसी का 8-10 टके के टैक्स रेट इफेक्टिवली कम करते हो तो आप मान लो कि आपने उस कंपनी का लाखों रुपया बचाया है. ठीक है, टैक्स रेट यहाँ पे 22% है, यहाँ पे 15% है. यहाँ पे सरचार्ज लगेगा 7% का, 12% का, जैसे आपका नॉर्मल लगता है. यहाँ पे सरचार्ज बाय डिफॉल्ट है 10% दोनों जगह पे. इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे 25.16 आता है, यहाँ पे 17.16 आता है. वेदर कंडीशन रिगार्डिंग टू न्यू अंडरटेकिंग नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप, तो ऐसा कोई कंडीशन है क्या कि स्प्लिटिंग अप वगैरह नहीं होना चाहिए, डीमर्जर, ऑर्गेनाइजेशन, अमालगमेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है. लेकिन यहाँ पे कंडीशन है
क्योंकि ये कंपनी जेन्युइनली न्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पहले से कोई कंपनी चालू था, आपने उसको उसका नाम चेंज करके नया ए लिमिटेड पहले से था 10 साल से चल रहा है, उसी को आपने उसका ये रिस्ट्रक्चरिंग करके बी लिमिटेड करके दिखाया, ना ही नया प्लांट एंड मशीनरी लाया, ना ही नया आपने एम्प्लॉयमेंट लाया, ना ही अपने लेबर बढ़ाया, कुछ नहीं बढ़ाया, खाली आपने कंपनी का नाम चेंज किया। ये करके हम हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट्स अ वेरी क्लियर एजेंडा फ्रॉम गवर्नमेंट कि बाबा न्यू मतलब न्यू, पक्का न्यू बोलो, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करने का, स्प्लिटिंग नहीं करने का, मर्जर डीमर्जर नहीं करने का, ठीक है ना। नेक्स्ट, whether stipulation regarding to non use of second hand plant and machinery is applicable। आपको पता है एडिशनल डिप्रिसिएशन वगैरह में हमने बात की थी कि आपको कहीं कहीं भी सेक्शन में लिखा जाता है कि आपको सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं यूज करना है। वैसे यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्योंकि ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ पे ये कंडीशन है कि आप लोगों को न्यू प्लांट एंड मशीनरी ही यूज करना है। यू हैव टू यूज न्यू प्लांट एंड मशीनरी। सेम यहाँ पे कि कुछ बिल्डिंग वगैरह आपने पहले कुछ नॉन यूज ऑफ बिल्डिंग, अर्लियर यूज फॉर होटल और कन्वेंशन सेंटर, पहले आपने अगर कोई बिल्डिंग वगैरह यूज की है तो उसको यूज नहीं करना है, ठीक है ना। नया बिल्डिंग भी नया होना चाहिए आपका। यहाँ पे एग्जम्पशन फ्रॉम 115 जेबी, मैट में से एग्जम्पशन मिलेगा क्या? हाँ, इसको मैट, इन दोनों कंपनीज को 115 BAA एंड BAB दोनों कंपनीज को मैट में से एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि मैट जिस प्रोविजंस के लिए लाया गया था इंडिया में, उन प्रोविजंस में ये कंपनी द डिडक्शन ही नहीं लेती। जैसे ATIA, ATIB, ATIC, 10AA, 35AD, इन सारे सेक्शन में डिडक्शन ही नहीं लेती। जब डिडक्शन लिया ही नहीं तो मैट लगेगा ही नहीं, ऐसी यहाँ पे बात होती है। पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं आगे, मैट वाला पॉइंट मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा। When option for benefit under this section should be exercised, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव सिस्टम है, ऑप्शनल है, तो आप लोगों को ऑप्ट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा एप्लीकेशन के लिए। ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर 139, कंपनी का ड्यू डेट जो होता है वो अक्टूबर होता है, और इंटरनेशनल कंपनी अगर होगा तो नवंबर होगा। तो आपको ये ड्यू डेट के पहले फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर, ये आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे ऑप्ट करना पड़ेगा। और यहां पे भी वही है, ऑन और बिफोर फाइलिंग द रिटर्न। लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉर फर्निशिंग, देखो यहाँ पे लैंग्वेज देखो, ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर 139 फॉर द फर्स्ट रिटर्न, लैंग्वेज देखो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर द फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम। जो फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम आप भरोगे ना, मतलब आपका जो पहला साल होगा इनकॉर्पोरेट करने के बाद पहला साल, उसी में ही आपको 115 BAB का बेनिफिट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप तो नई कंपनी हो ना। आपने कंपनी इसलिए बनाई कि क्योंकि आप 115 BAB का बेनिफिट लोगे, तो आपको फर्स्ट ईयर में उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं किया तो आप सेकेंड ईयर में न्यू कंपनी नहीं हो, तो देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर 115 BAB, यू विल बी एलिजिबल फॉर 115 BAA। बा में आप कभी भी जा सकते हो, बैब में नहीं जा पाओगे, ठीक है ना। Whether company can opt to claim exemption under exemptions and pay tax at pre-amended rate, and can opt for concessional rate of tax after expiry of the tax holiday or exemption period। सर ये टैक्स हॉलीडे पीरियड क्या होता है? आप लोगों को पता है कि ATIA वगैरह में टैक्स हॉलीडे पीरियड कभी कभी 15 ईयर आउट ऑफ 20 ईयर्स होता है, 10 ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स होता है। तो सर कंपनी का अगर टैक्स हॉलीडे पीरियड चालू है और अभी 7 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को, 3 साल का अभी और उनका टैक्स हॉलीडे पीरियड बाकी है, तो ऑब्वियसली ये 3 साल का पीरियड का आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा अगर आप ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम में जाओगे। तो 115 BAA ने क्या बोला है कि 115 BAA में आने का कोई ड्यू डेट तो नहीं है कि इस दिन के पहले आपको 115 BAA में आना है। तो यू टेक योर ओन टाइम, आप 3 साल का बेनिफिट ले लो पहले, जब आपके बेनिफिट खत्म हो जाएंगे तब आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। यस, ये पॉइंट आपको नीचे भी मिलेगा। यहां पे वैसा कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है नई कंपनी है, न्यू कंपनी है, और क्योंकि ये न्यू कंपनी है इसने कोई टैक्स के स्पेसिफिक डिडक्शन जो होते हैं ATIA 35AD, वो सारे डिडक्शन इसने कभी जिंदगी में क्लेम नहीं किए पहले, और आगे भी इसको क्लेम नहीं करने। सिंस ऑप्शन to avail this section has to be exercised before the due date specified under 139(1) for the furnishing the first return of income which the assessee is required to furnish under this particular provision, तो ये कभी वो provisions लेगा ही नहीं, टैक्स डिडक्शन की स्पेशल provisions लेगा ही नहीं। Whether existing company migrate from section 115 BA to new section, तो यहाँ पे तो ये applicable नहीं, BA to BAA जाएगा क्या? तो हाँ सर, यहाँ पे अवेलेबल है, BA वाली कंपनी BAA में डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि BAA में टैक्स का रेट ही कम है। लेकिन ये माइग्रेशन का पॉइंट यहाँ पे आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन होता ही नहीं, यहाँ पे तो नई कंपनी आती है 115 BAA में।
सर व्हाट हैपेंस टू एग्जिस्टिंग मैट क्रेडिट, क्योंकि इन दोनों कंपनी को मैट क्रेडिट एप्लीकेबल नहीं है, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये पहले थी ही नहीं, इसको तो मैट क्रेडिट है ही नहीं अवेलेबल। लेकिन जो कंपनीज को मैट एप्लीकेबल है उन कंपनीज का मैट क्रेडिट ड्रॉप हो जाएगा, अनयूटिलाइज क्रेडिट लैप्सेस इफ द कंपनी ऑप्ट फॉर 115 BAA। यहाँ पे क्योंकि मैट एप्लीकेबल होता है तो कंपनी कैन कैरी फॉरवर्ड, वो पुराना सेक्शन है। सर किसी कंपनी को कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन हुआ तो कैपिटल गेन का रेट तो 20% है, या शेयर मार्केट में से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो रेट तो 15% है। तो अगर स्पेशल इनकम कोई हुआ रहेगा आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ शेयर मार्केट का एसटीटी पेड, तो आफ्टर 1 लाख आपका रेट 10% हो जाता है। तो सर स्पेशल इनकम अगर होगा तो क्या, तो मैं बता रहा हूं स्पेशल इनकम अगर होगा तो यहाँ पे आपको 115 BA में स्पेशल रेट ही लगेगा, यहाँ पे भी आपको स्पेशल रेट लगेगा, यहाँ पे भी आपको स्पेशल रेट ही लगेगा। इसका ये मतलब है कि अगर आपकी कंपनी स्पेशल रेट के लिए एलिजिबल है, आपके पास स्पेशल इनकम है तो स्पेशल रेट ही लगेगा, उसका कोई टेंशन मत लो आप। प्लस 10% का सरचार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा, वो याद रख लो बस, ठीक है ना। सरचार्ज तो आपको यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, सरचार्ज डेफिनेटली लगेगा क्योंकि सरचार्ज 10% आपका स्टैंडर्ड है। सर अगर कंपनी के पास रेंटल इनकम भी तो है तो यहाँ पे रेंटल इनकम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे रेंटल इनकम तो 22% प्लस 10% प्लस 4% मतलब इफेक्टिवली 25 पे टैक्स होगा। लेकिन 115 BAB में हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को ज्यादा कंसेशन दिया हुआ है, 17.16% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए दिया है। पता चला कंपनी तो डिबेंचर परचेस करके डिबेंचर इंटरेस्ट कमा रही है, कंपनी हाउस प्रॉपर्टी परचेस करके रेंटल इनकम कमा रही है, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग इनकम होगा आपका वहां पे टैक्स का रेट 15% नहीं होगा, 22% प्लस 10% प्लस 4% होगा। मतलब मिनिमम रेट ऑफ टैक्स ऑन अदर इनकम विल बी 25.168। खाली जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करके आप पैसा कमाओगे उसके ऊपर जो टैक्स का रेट होगा वो 17.16% होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बेसिक्स पढ़ा दिया इन दो रेट्स के बारे में, ये दो रेट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। आगे सब कुछ जो भी लिखा है वो मैट के बारे में लिखा हुआ है, मैट क्रेडिट, ये सब कुछ मैट के बारे में ही लिखा है, ठीक है। तो मैट में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले पढ़ा दूं। तो ये पहला क्वेश्चन है जो हम सीए मॉड्यूल का या सीए पास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, सीए फाइनल का। ये क्वेश्चन पहले हम हैंडल करेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अलाउंस डिसअलाउंस बताना है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी का लेक्चर में यहीं पे रोक देता हूँ।